Okay, welcome Tapas sir in our next session. So, since yesterday, we are talking about indigenous construction styles and sustainability aspect of it and adaptability of it. So, these styles, and we have discussed very much on these styles, how we can adapt it or how we can preserve it and take it into our practice. So, our next speaker, architect Tapas Upadhyay, is actually working on it and doing a lot of work on it his projects. So I welcome architect Tapas Upadhyay for our expert lecture for the next session, and the topic is social architecture. Uh, just a brief about architect Tapas Upadhyay. Architect Tapas Upadhyay is involved in social and commercial designing that range from buildings, exhibitions, stages, product design, keeping traditional craft practices and sustainability at the center. He has been project architect, Hunarshala Foundation for Building Technology and Innovation, Bhuj, Kutch District, Gujarat, Tibetan Nunnery Rehabilitation, Nepal, Earthquake Rehabilitation Program in collaboration with Illuminati Support Group for Shelter that include social process designing, construction and retrofitting at Nepal, Government School, Baram, Uttarakhand, Art Facilitation Center, Vadodara, Gujarat, historical documentation of shallow domes found in Haryana and UP, research with debris blocks, building blocks made from building waste, solid waste management in Jayanagar, Bhuj. He has facilitated many workshops, including Zonal NASA Workshop 2017, workshop on shallow masonry domes in collaboration with Studio Fold Pune, Allen College of Architecture Pune, Pratibha Vithi Bhopal. He also explored social process in architecture and different type of building technologies during his internship and volunteership at Tibet Heritage Fund, Leh, Hunashala, Bhuj, Cosford, Trivandrum, during working on documentation projects of Tibetan heritage building and buildings of Laurie Baker. Uh, the speaker, he was a speaker for various workshops, conferences, and conventions, specially mentioning speaker at Artisan in Architecture workshop organized by Hunar Shala. Then uh, he has many more awards and recognitions. Also, he is in 2015 he is a zonal NIASA finalist for thesis hybrid waste management system, and it is published by NIASA in the final archives thesis of India. He has been recognized as scholar for 361 degrees conference 2013 architecture for purpose, and 2014 also architecture and identity. Special mention for Transparency Architecture College. Also secured second position for Birla White U Ratna Award in affordable housing category. I welcome architect Tapas Upadhyay for the expert lecture. Sir, please take charge of the session. सभी को नमस्कार और चारू मित्रा जी इतना विस्तृत मेरा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स में ही बात करूँगा, वो मेरे हिसाब से सभी को समझ में भी आ जाएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन ऑन कर लेता हूँ, एक मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है चारू मित्रा जी? Yes, it is visible. हाँ जी, हाँ जी। तो
मैं पिछले 3 साल पहले मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके अपने भोपाल में आगौर की स्थापना करी। तो हम सीधे उसी पे आते हैं कि हम सोशल आर्किटेक्चर या सामाजिक वास्तुकला के ऊपर। तो मैं शुरू से इस एक इसको बोलते हैं द्वंद में या एक डुअलिटी में रहते थे कि अब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर या डिजाइन की बात करते हैं अगर हम, और एक सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स की बात करते हैं और आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट्स उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट हमेशा मिसिंग लगता है। और मतलब अगर अगर एक सामाजिक वास्तुकला की बात करें तो एक तो होती है सिर्फ आर्किटेक्चर, जिसमें कि आप सिर्फ स्पेस क्राफ्ट पे ध्यान देते हैं, पर हर हर एक स्पेस डिजाइनिंग अपने आप में एक सोशल प्रोसेस का पार्ट होता है और होना चाहिए। हम उसको उस नजरिए से देखते नहीं है, इसलिए काफी सारी दिक्कतें और फ्लक्स डेवलप होते हैं। तो ये मैं आप सभी को इसी एक जर्नी पे लेके जाता हूँ कि सोशल आर्किटेक्चर बेसिकली मैंने किस तरीके से समझा और उसको मैं अपनी कैसी प्रैक्टिस में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी खुद की यात्रा शायद सबसे अच्छी तरीके से मैं उसको डिफाइन करने के लिए कारगर होगी। तो मैं शुरुआत में जब घूमना चालू किया या बहुत सारी और भी दूसरा मैंने अपने भी गांव खेड़े देखना जब चालू किए, तो मुझे उन बिल्डिंग से ज्यादा आई एस्पायर टुवर्ड्स दोज बिल्डिंग्स हु आर दोज आर बिल्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स, जो लोगों के द्वारा खुद बनी गई बिल्डिंग्स हैं। जैसे कि आप किसी भी गांव में चले जाइए या और भी दूसरी जगह चले जाइए जिन्होंने अपने भाव से अपनी जरूरतों के लिए जो लोगों ने मिलके या उनके घर खुद बनाए हैं, जब आप उस डिजाइन्स को देखते हैं, उन घरों को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इन जनरल डिजाइनर्स की जरूरत सिर्फ एक एलीट क्लास को ही है, उसके अलावा नहीं है। मतलब और वो और ज्यादातर जो इंस्पिरेशन मेरे लिए भी आता है वो इन डिजाइन से आता है जो लोग अपने हाथ से बहुत प्यार से बहुत भाव से खुद बनाते हैं। और मैंने जैसे काफी जगह अलग अलग जगह काम किया, जिसमें लद्दाख है और नेपाल है। नेपाल और वो काफी लंबा समय गुजारा मैंने नेपाल वगैरह में। तो वहां पे भी अब जब आप बिल्डिंग्स देखते हैं जो लोगों ने या गांव में लोगों ने अपने हिसाब से बनाई है, तो उसकी जो सुंदरता होती है वो उसका कोई मेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर मुखौटा नहीं होता। मुखौटा नहीं होता का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपनी घर बना रहा हूं तो मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको बनाऊंगा और मेरी जरूरतें ही अपने आप में एक सुंदरता का हिस्सा बन जाएंगी। और वही इंडिजिनस ब्यूटी भी कहलाती है, जिसको हम बड़ी नकली तौर पे आज आर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा अगर हम फिर दूसरे जर्नी में आता है हुनरशाला। हुनरशाला बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक्चुअली इस अंडरस्टैंडिंग को लेके काम करा है पिछले 25 सालों से, और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उसका 7 साल हिस्सा रहा। और तो ये एक प्रोजेक्ट मैं आप सबके सामने रखता हूँ, जो कि टिबेटन ननरी पे मैं पूरी तरीके से मैं काम कर रहा था, जो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे, जो कि अब चाइना है। तो वहां पे भूकंप में पूरा की पूरा गांव, ये जो आपके सामने है, ये जो आपको पूरे जो घर दिख रहे हैं, ये सारे घर, तो ये पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे, भूकंप में गिर गए थे। और यहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, या आपको 9 या 10 घंटे पैदल ट्रैक करके जाना होता है इस गांव में। तो आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिहेबिलिटेट ऑल द 155 हाउसेज इन द विलेज, जो कि मेरे को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे लिए, मेरी इसी अंडरस्टैंडिंग को और गहराई से समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे करीबन 1.5 साल रहा। और मैं आपको सबसे पहले तो ये वाला जो आप घर, ये एक डिजाइन शायद देख रहे हैं आप, तो ये वाला जो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ
क्योंकि ये वाला जो डिजाइन था ये भुज में बैठ के हम लोगों ने डिजाइन किया, सोच के कि वो गांव के लोग जो है उनको ये पसंद आएगा, ठीक है, वो अर्थक्वेक मेजर को इस्तेमाल में करते हुए। तो जब हम लोगों ने ये वहां पे जाके मॉडल हाउस बनाया साइट पे, तो जितने भी नन्स थी वो सारी गुस्सा हो गई थी, और उनने बोला था कि आप चले जाइए, हमको आपसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाना है। तो फिर वो वाला दौर था जब बिना किसी रिसर्च या अंडरस्टैंडिंग के या उनकी जरूरतों को समझे हुए या उनकी प्रपोर्शंस को समझे हुए हम लोगों ने घर डिजाइन कर दिया था, और बहुत ही उनके नजरिए से बहुत ही बकवास घर था वो। फिर वहां पे जब 1-1.5 महीना पूरा केस स्टडी करी, तो फिर समझ में आया कि ये डिजाइन बिल्कुल ही ऑब्सोलीट है वहां के लिए, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, साथ ही साथ वो नीचे बैठ के पढ़ते हैं, तो उनको जो खिड़की है वो 3 फीट पे नहीं चाहिए, वो 6 इंच पे चाहिए। उनके उनके खुद के जो बॉडी डायमेंशंस है उनके हिसाब से हमको यहाँ पे लगता है 8.5 फीट की सीलिंग हाइट बहुत छोटी है, पर उनके लिए तो 7-7.5 फीट पे पूरी सीलिंग कट जानी चाहिए। तो ऐसे करके फिर नई डिजाइन इवॉल्व हुई, और हम लोगों ने उनके साथ मॉडल्स शेयर किए जैसे यानी के साथ है, तो वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ। फिर उसी मॉडल के बेस पे हर एक घर को अलग अलग तरीके से, हर एक नन के साथ में अलग अलग बैठ के उनके घर डिजाइन किए गए। तो ये वाले जो आपको पूरा पैच दिख रहा है, ये पूरे 155 हाउसेज है जो कि बन चुके हैं, ये पूरा रिहैबिलिटेटेड आफ्टर रिहैबिलिटेशन है। और जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए थे इसमें, क्योंकि वहां पे रोड एक्सेस नहीं था, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास यही चीज थी कि वहां पे हम जो आजू बाजू के मटेरियल्स हैं उन्हीं से हमको अर्थक्वेक रेजिलिएंट घर बनाना था। सिर्फ छत हम लोगों ने क्योंकि लकड़ी उस समय इतनी अवेलेबल नहीं थी जंगलों के हिसाब से, तो हम लोगों ने वो लोहे की बनाई थी। बाकी जो दीवार है वो उनके पुराने घरों के पत्थर या और नए पत्थर और मिट्टी और उनकी पुरानी घरों की लकड़ियां और कुछ इसको एक अलग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको रेनफोर्समेंट, मतलब रेनफोर्समेंट सिर्फ तारों का इस्तेमाल करके आप अर्थक्वेक प्रूफ बनाते हैं। तो ऐसा करके पूरे 150 घर बनाए गए। इसमें खास बात ये थी जो मैं शुरुआत में आपसे मैं साझा कर रहा था, कि इसमें हर एक जो नन थी वो अपने घर में खुद काम कर रही थी, और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उनके दिल के करीब और हो गया था घर। वो बिल्कुल एक गवर्नमेंट मॉड्यूल की तरह नहीं था कि अब मैंने आपको घर के सामने रख दिया और आपको उसको इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि काफी समय से हमारी जो रूरल हाउसिंग स्कीम है वो चलती आई है, तो इसलिए ये जैसे ये जो नन है, ये उनके नए घर में बैठी हुई है, ये उसके नए घर की तस्वीर है। तो आप देखेंगे कि डायमेंशंस काफी अलग है यहाँ पे, और अब ये मतलब काफी खुश है ये। जब मैं लौट रहा था तब सभी मिलके मेरे को बहुत भावुक तौर पे बोला था कि हमको हमारा सपनों का घर मिल गया आखिरकार। तो एक उससे हमको ये भी समझ में आता है धीरे धीरे कि एज एन आर्किटेक्ट और डिजाइनर आपका रोल क्या होता है जब आप एक सोसाइटी में काम करते हैं। मतलब आप एक पेंटर नहीं है कि आप अगर कहीं भी हूँ आप एक जैसी पेंटिंग बनाए या एक तरीके की बिल्डिंग बनाए, वो कभी नहीं हो सकता। अब दूसरा ही एक उदाहरण था जो मेरे को मौका मिला था कि ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल था बरम में, बरम मतलब पिथौरागढ़ से 3 घंटे आगे। अगेन ये इस पूरे इलाके का सिर्फ इकलौता एक स्कूल था, बनाना था जो टाटा ट्रस्ट को पूरा फंड कर रही थी इसे। और यहाँ पे इस पूरे इलाके का सिर्फ ये एक ही स्कूल होना था, जिसमें कि लोग 2-2 घंटे बच्चे जो है 2 घंटे चल के आने थे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल था इस पूरे रीजन का। तो इसमें भी बच्चों के साथ मिलके और टीचर्स के साथ मिलके एक्सरसाइज की गई, डिजाइन्स भी वैसे डेवलप किए गए, और फिर उस तरीके से ये पूरा की पूरा स्कूल निकल के आया। तो लोगों का एंगेजमेंट हम जो कि ज्यादातर बार नकार देते हैं, और वही डिजाइन की भी वो खूबसूरती बनी। उसके बाद जब पिछले 3 साल पहले सबसे पहले मुझे मौका मिला था कि मालवा कबीर यात्रा होती है बड़ी अच्छी यहाँ पे, जो कि प्रहलाद सिंह टिपनिया जी करवाते हैं, तो उसके स्टेज डिजाइन करने का मौका मिला था। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो एक ट्रैवलिंग, ये जो फोक म्यूजिक फेस्टिवल होता है मालवा कबीर यात्रा,
जो कि 7 दिन में आप 7 अलग अलग गांव जाते हैं और वहां पे एक सत्संग कार्यक्रम होते हैं, और आप अपने आपको हर दिन एक नया स्टेज डिजाइन करना था। तो उसमें भी ये जितने भी आप मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल देख रहे हैं, ये सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं ज्यादातर, जो कि हम लोगों ने गाँव में गाँव के जो घर थे उनके जो ये जैसे आप ये देख रहे होंगे साफे हैं, तो ये उनके घर जो पुराने खराब साफे पड़े थे वो सब इकट्ठे कर लिए, चटाइयाँ भी उनके घर से इकट्ठी कर ली, पुराने मटके टोपड़ियाँ और ये सब चीजें, और इवन ये जो तो पूरा की पूरा जो स्टेज डिजाइन था वो इस तरीके से था कि जो कबीर की फिलॉसफी है कि आप हमेशा प्रकृति के साथ एकाक रहें, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरे स्टेज डिजाइन किए गए। और इसमें जब हम डिजाइन कर रहे थे तो जिस भी गांव में रहते थे उन वहां पे जो लोग थे उनके साथ कोलैबोरेट करके हम अपने आइडिया शेयर करके फिर डिजाइन करते थे। तो भली वो कोई टेंट वाले हमारे सारे भाई लोग हो या लाइटिंग हो या और भी लोग हो। इसके बाद फिर अब सामाजिक वास्तुकला की बात करें तो भली वो स्टेज डिजाइन हो, भली कोई भी डिजाइन प्रोसेस हो, इसलिए हम मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारी आर्टिसनशिप्स है, भली वो कोई सी भी हो, पर वो आज के समय में भी हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते हमने उसके ऊपर अच्छे तरीके से थॉट थ्रू करा हो। तो ऐसी एक हरियाणा और रोहतक की टेक्नोलॉजी है जिसको डार्ट की छत बोलते हैं, विच इज शैलो मेसनरी डोम। तो उसके ऊपर काफी रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन करने का मौका मुझे मिला था, और फिर उसके बाद से ही करीबन 6-7 सालों से मैं वहीं के जो कारीगर हैं उनके साथ में मिलके काफी इस छत को भी डेवलप किया, अलग अलग फॉर्म्स डेवलप किए जो आप आगे देखेंगे। जैसे ये शिखा मैडम के ही वो विन्यास स्टूडियो पे ये फ्लाई ऐश से बनाया था। फिर एक हम जो प्रोजेक्ट जिसमें मेजरली अभी इन्वॉल्व है वो मध्य प्रदेश रूरल टूरिज्म का है, जिसमें कि ये बहुत ही अच्छा, और ये हुनरशाला के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं हम, जिसमें कि ये पूरा की पूरा जो 2 तरीके की टूरिज्म है, जिसमें अभी ये बहुत ही अच्छी टूरिज्म डिपार्टमेंट की पहल है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम 5 स्टार या 3 स्टार होटल में रुके, वो चाहते हैं कि हम गांव में जाके हम उन्हीं के घरों में रुके, या ये समझे कि वो लोग कैसे रहते हैं या वो कैसे खाना खाते हैं। तो उसके लिए पूरे 100 गांव में हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काम उस 100 गांव में से हम 100 गांव में से 30 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो गांव वाले हैं उन्हीं की जमीन पे मतलब उन्हीं के घर के आजू बाजू ही हम एक और उनकी ट्रेडिशनल मेथड्स को स्टडी करके हम एक तरीके से होम स्टे डेवलप कर रहे हैं, जिसमें बाद में आके कोई भी टूरिस्ट रुक सकता है। तो शायद आप अगले सीजन में आप टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारे दिख जाएंगे और आप इसमें जाके रुक सकते हैं। और अलग अलग गाँव में जाके जो प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि सभी गांव की टाइपोलॉजीज पूरी अलग है, तो पहले उनको स्टडी करना, फिर उनके हिसाब से फिर उसके मॉडल्स बनाना, और फिर उसके बाद लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि वही मॉडल्स फिर मतलब हर एक रीजन के हमने 4-4, 5-5 मॉडल्स बनाए, लोगों के साथ डिस्कस करा, फिर आपको क्या पसंद है इसमें, क्या पसंद नहीं है, और कुछ एक क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट की भी गाइडलाइंस थी, तो फिर इन दोनों चीजों को फ्यूज करते हुए लोगों के साथ ही चीजों को कैसे डेवलप किया जाए, इस पे बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने काम किया। तो अलग अलग गांव में जाके वहां पे हम प्रेजेंटेशन देते थे। ये जैसे हितग्राही है जो आपको ये राइट इमेज में दिख रहे हैं, तो महिलाओं का एंगेजमेंट किस तरीके से रहे, और मतलब सभी लोगों का एंगेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को संभालने के लिए सभी लोग जुड़े गांव में। तो इस तरीके से ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अब दूसरा भी फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी हम किस तरीके से जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और आर्टिसनशिप है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काफी ध्यान देते हैं, या लोकल मटेरियल्स को। तो जैसे टेराकोटा टाइल्स हो गए, और जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, साथ ही साथ आपके हेल्थ के लिए भी सूटेबल हो। तो इसमें आप देखेंगे हम चूने की दीवार कैसे बना सकते हैं अब, और ये कोई पुराना घर नहीं है, ये बहुत ही मॉडर्न घर है, और हम उसके अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को। और ये हमारा ऑनगोइंग दूसरा एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बड़ा एक रिजॉर्ट है, इको रिजॉर्ट है जो ग्वालियर में है।
इसमें भी पूरा की पूरा साइट की मिट्टी से ही पूरी की पूरी दीवारें और छत में पूरे की पूरे डोम्स बनाए गए या खपरेल इस्तेमाल की गई। तो द अदर कंसर्न जो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखना बहुत जरूरी होता है कि एक तो ये चीज कि आप कोई भी चीज बना रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो मार्केट है वो इस तरीके से है कि हम लोग बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देते कि हमारे आजू बाजू क्या है, हम लोग ये और या उसकी खूबसूरती क्या है, या उसकी खूबसूरती को हम लोग आज के समय में या मॉडर्न ट्रेंड्स में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमेशा हम इंडियन लोगों की एक सबसे बड़ी जो चूक रह जाती है वो ये रह जाती है कि हम लोग ये ऐसा हमेशा सा देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है या हम इटालियन मार्बल कैसे लगा सकते हैं, rather than थिंकिंग कि हम लोग हमारी ही जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम मॉडर्न टाइम्स में या हमारी आज की जरूरतों के साथ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी जो फर्म है आगौर, उसका सबसे ज्यादा मेन कंसर्न यही रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें ये भी रहता है कि आप अगर मान लीजिए कि वो टेक्नोलॉजीज को पूरी तरीके से भूल रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखना होता है कि वो जो लोग हैं उसके पीछे और उनकी जो इकोनॉमिक चेन है उसको भी आप पूरी तरीके से नकार रहे हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि हम जो हजारों सालों से चीजें करते 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 बहुत ही सुंदर चीजें डेवलप हुई हैं, हम एकदम से उनको नकार दें। उसमें नई सोच डालना जरूरी होता है, जो कि मेरे को लगता है कि आज के जो आर्किटेक्ट या डिजाइनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ही एक साधारण सा ये आप देख रहे होंगे कि ग्वालियर में बहुत सारे सिलबट्टे बनते हैं, तो उन सिलबट्टों को हम लोगों ने दीवार में इस्तेमाल किया, या ये इस इमेज में देख रहे होंगे नंबर प्लेट्स की तरह। ये अगेन ये जो इमेज देख रहे हैं कि वहां पे जो पॉटर्स हैं, जो कुम्हार हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये फिलर स्लैब की छत होती है, तो हमने उनसे ही पूरे की पूरे हमारे सकोरे बनवाए और पूरे छत बनी। ये अगेन दीज आर द रूफ व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें भी बहुत अलग अलग पैटर्न्स और बहुत सुंदर अभी निकल के आया है। इसमें अलग अलग सब सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके और लोकल क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल करके ये डिजाइन निकल के आया है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ये भोपाल का एग्जाम्पल है, जो वाल्मी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने इनवाइट किया था मुझे कि आप इस तरीके के कुछ हम चाहते हैं कि आप थिएटर बनाइए, ओपन एयर थिएटर बनाइए, जो कि आज के समय में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करे। तो फिर आइडिया ये निकल के आया कि हम पूरा की पूरा इसको कचरे से बनाते हैं। तो कचरे से कैसे बनाएंगे, आप जैसे इस इमेज में देख रहे होंगे, तो इसको ये पूरा की पूरा जो थिएटर ये डिजाइन आप देख रहे हैं पूरा की पूरा पहले तो हमारी घाट या मस्जिदों की सीढ़ियां या उस तरीके से बना गया है, क्योंकि एकदम तालाब के किनारे पे है। और दूसरा कि पूरा की पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो मलबे से बना हुआ है। जो वाल्मी में बहुत पुराने उनकी बिल्डिंग टूटी थी, तो उसके जो मलबे बने हुए थे, मलबे बचा हुआ था, तो उससे हम लोगों ने उसको डेब्रीज वॉल बोलते हैं, शटर्ड डेब्रीज वॉल। तो ये पूरा की पूरा कंस्ट्रक्शन हमने शटर डेब्रीज वॉल से किया। जो पैनल्स हैं वो हम लोगों ने पूरे स्क्रैप मेटल से किए। एक बहुत लंबी दीवार है जो कि हम लोगों ने ये बियर बॉटल्स जो वेस्ट मिलती हैं उनसे बनाई। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ये पूरा हम लोगों ने मैक्सिमम ये देखा था कि हम कैसे वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए हम इसको बना सके। और फिर ये जैसे कंप्लीशन होने पर कुछ होने के पहले कुछ तस्वीरें हैं, ये कंप्लीटेड है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं इसे, थोड़ा बहुत शायद फिनिशिंग का काम और रह गया है। अब दूसरा ये प्रोजेक्ट ये बांधवगढ़ में एक रिजॉर्ट है, उसका डाइनिंग हॉल है। ये भी पूरा वहीं पे जो लोकली बाजू में जो लोगों के द्वारा बनी हुई ईंटें थी उसी को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने पूरा ये बनाया हुआ है। और ऊपर ये जो चटाई आप देख रहे हैं ये वहीं पे बांधवगढ़ में ही बहुत बांस की चटाइयां बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो इसी को किस तरीके से हम कंपोज कर सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। इसमें भी पूरा बहुत सारा वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे बियर बॉटल्स हैं जो पीछे आपको दिख रही हैं, ये उसकी एक और तस्वीर है। इसके बाद हम लोग बहुत सारा
एग्जीबिशन और क्यूरेशन पे भी काम करते हैं। ये 2 एग्जीबिशन क्यूरेट करी है जो भुज में LLDC करके एक टेक्सटाइल म्यूजियम है, उसके लिए काम किया था हमने। जरी जरदोजी जो एक हमारी टेक्निक है उसको पूरा क्यूरेट किया हुआ था। ये उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये बनारस ब्रोकेड के ऊपर एग्जीबिशन थी, जो कि बनारस में हमारा अलग अलग तरीके से जो काम होता है साड़ियों पे, इसमें भी ये वाला जो आप जाली देख रहे हैं वो जब बनारस में इसको प्ले कार्ड्स बोलते हैं, प्ले कार्ड सॉरी। तो ये जो आपकी बनारसी साड़ी में जो डिजाइन होती है ये उसका वेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली। ये इसी से होता, जब ये खराब हो जाते हैं इसी से डिजाइन बनता है, और ये जब खराब हो जाते हैं इसको हम लोगों ने डिस्प्ले पे लगाया था। और अगेन इसमें भी जो हम इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट की बात कर रहे थे, इसमें भी जो आप ये सारे जो पर्दे देख रहे हैं इसको इसको रंगाया हम लोगों ने। तो भुज में ही जो यहीं पे पास में जो रंगरेज भाई थे हमारे, तो उनसे हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने इसके कलर्स और पैलेट वो सारी चीज पे काम किया। इसके बाद मतलब अगर हम आजू बाजू देखें तो हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं और बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जिनके साथ मतलब जिनको शायद हमने भूला बिसरा मान लिया है, कि बोले कि वो सिर्फ म्यूजियम की चीज बन के रह गई। हमने ऐसा मानना चालू कर दिया है, पर पर्सनली मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं उसको हम लोगों की एकेडमिक भूल मानता हूँ कि हमने कभी भी हम लोगों के ट्रेडिशनल क्राफ्ट पे या हम लोगों के ट्रेडिशनल डिजाइन या टेक्नोलॉजीज पे ध्यान नहीं दिया, और हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो सारी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस कर दी। और उसके बाद हमने उसको सिर्फ ऐसा मान लिया कि अच्छा अब तो ये म्यूजियम में ही दिख सकता है। तो बहरहाल ये कसीरा मोहल्ला एक हरदा में एक पूरी लेन है, जिसमें पहले पूरा तांबे और पीतल पे काम हुआ करता था। अब बहुत चुनिंदा 1-2 परिवार हैं जो करते हैं, बाकी सारों ने वो छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो बिजनेस नहीं रहा, क्योंकि सारे मशीन इंडस्ट्री पे चला गया है। तो हम उनके साथ मिलके आज के समय के हिसाब से प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये कुछ डिजाइन है उसमें से, तो जैसे लैम्प्स हो गए, अभी कटलरी आइटम्स हो गए, वो अभी ऑन डिजाइन प्रोसेस है। तो ये पूरे प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो काम है वो हाथ का ही काम है। ये इसको टिपाई बोलते हैं हमारे इलाके में। और उस टिपाई का इस्तेमाल करके जो मॉडर्न इंटीरियर या आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। तो ये उसका एक उदाहरण है। इसके और भी सैंपल्स हैं, वो उसकी फोटोग्राफ्स खींच रही हैं अभी। तो आपको जल्दी हमारी वेबसाइट और हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएगा। और अगर कोई भी आप में से भी अगर कोई खरीदना चाहे तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस। तो जी, तो मेरी तरफ से मैं इतना ही था। और इसके बाद में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भले ही हम कोई भी फील्ड से क्यों ना जुड़े हों, भले ही वो आर्किटेक्चर हो, डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन हो, पर क्योंकि हम लोग एक चीज सबसे ज्यादा जो भूल जाते हैं उसको, वो है लोग जो हमारे आजू बाजू हैं, और जो हमारे पारंपरिक चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि उनका कोई महत्व नहीं है हमारी जिंदगी में आज के समय में, और जो भी हो जाना चाहिए उन्हें बिल्कुल मतलब अमेरिका जैसा हो जाना चाहिए या कोई भी यूरोपियन कंट्री जैसा हो जाना चाहिए। पर मैं इसको विश्वास नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में इंडिया में, बहुत सारे डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स इस तरीके से भी काम कर रहे हैं कि हम क्यों ना हर बिल्डिंग जो बनाए, या आप लोग भी सोचिएगा क्यों ना आप हर जो भी घर बनाए उसके अंदर नया जो आज का डिजाइन है वो आपके ट्रेडिशनल आर्टिसन से क्यों नहीं बना सकते। हम बिल्कुल बन सकता है, बस एक नई सोच की जरूरत है। और इसी के साथ मैं अपना ये वाला पार्ट खत्म करता हूँ। आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम चालू कर सकते हैं, जो भी आप जो भी पूछना चाहते हैं। थैंक यू तपस जी। मैं मतलब आपका वर्क मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पहले भी देखा हुआ है, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ आप और इसमें अभी शेयर कर सकते थे, शायद अगर अवेलेबल हो। जैसे आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट शैलो डोम्स एंड जो भी है, तो क्या आप अवेलेबल शेयर कर पाएंगे सर अभी?
हाँ, वो भी हम देख तो सकते हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि मतलब और इंटरेस्टिंग और समझ में आएगा लोगों को कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, और शायद उससे एक और एक ये ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि फिर वो लोग उसको किस तरह से अपने लेवल पर या अपने प्रोजेक्ट में कैसे उसको यूज कर पाएंगे, वो भी थोड़ा शायद ज्यादा अच्छे से वो आइडिया ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ आपको, मैं इसमें से खोल लेता हूँ चीजें। तो आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ। तो ये मैं आपको वर्कशॉप के फोटो ही थोड़े शेयर करता हूँ, तो आपको ज्यादा इसमें छोटा भी है, समझ में भी आएगा। तो ये आजाद भाई है, हमारे गुरु कारीगर हैं, रोहतक के हैं। तो ये अगर बनने की अगर प्रोसेस को देखें तो इसमें क्या होता है कि बहुत सिंपल और बहुत इजी प्रोसेस है ये। इसको डेवलप भी उस तरीके से हमारे कारीगरों ने किया है कि आप ये आप देखेंगे कि सिर्फ एक रिंग रिंग बीम बनती है। ये उसके बाद फिर बहुत सीमेंट और सिर्फ रेत का इस्तेमाल करते हुए हम ईंट को एक तरीके से चिपकाते हैं, और ये पूरा की पूरा आर्च एक्शन से बनता है। तो इसमें होता ये है कि हर एक रिंग अपने आप में स्टेबल होती है। कि अगर हम जैसे ये आप देखेंगे 3 बच्चियां खड़ी हैं इसके ऊपर, तो हर एक रिंग अपने आप में स्टेबल है। अगर वो रिंग बना के हम छोड़ भी दें तो वो अपने आप में एक आर्च एक्शन है। और ऐसे ही अलग ये देखेंगे तो ये रिंग्स बनती जाती हैं, और ऐसे करके वो एक पूरी बंध जाता है। मतलब फिर उसको हम टॉप से कवर कर देते हैं। खोलना चाहे तो खोल भी सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस। ये उसको शेप को अच्छा, इसके शेप की बात करें तो इसका शेप बड़ा कॉम्प्लेक्स शेप है। इसको हम शेल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है लगभग। कि अपने मतलब वो सिर्फ इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसका शेप ऐसा है। अगर इसको सिंपल तरीके से ऐसा सोच सकते हैं, ये कटोरी नहीं है बेसिकली, हर तरफ से आर्च है, और इसमें आप देखेंगे ये। और इसकी खासियत ये होती है कि ये शैलो शेल स्ट्रक्चर है बेसिकली, कि बहुत चपटा है। तो इसको हम लोग 10 माले की बिल्डिंग पे भी बना सकते हैं, बनाया भी हुआ है मल्टी, क्योंकि और ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसका बहुत कम से कम 30-40% बचत तो होती है, क्योंकि इसके अंदर सरिया नहीं है और कोई कंक्रीट नहीं है। तो ये सस्टेनेबल भी है बहुत ज्यादा। साथ ही साथ ये हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस के द्वारा बना हुआ होता है। तो जितना भी हमारा जो मटेरियल में पैसा जाना होता है ज्यादातर, वो हमारे कारीगर को चले जाता है। तो ये एक इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हमको देखना होता है, तो उसके नजरिए से भी ये बहुत बढ़िया है। और और ये अपने थर्मल कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप मतलब इसका जो एक क्योंकि इसमें कंक्रीट नहीं, और कंक्रीट बहुत गर्म होता है। तो इसका जो कर्वेचर होता है उसको ऊपर ऊपर से हम फ्लैट करके थोड़ा सी 8-9 इंच का जो कर्वेचर को फ्लैट करके हम ऊपर से उसको टाइलिंग कर देते हैं। तो ये नीचे गर्मी में आपको कम गर्मी भी लगती है। और इसको ऐसा जरूरी नहीं हम किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब इसमें शेप इंपॉर्टेंट है।
इसका आकार बहुत जरूरी है। अब आप उसको किसी भी मटेरियल से बनाएंगे वो स्टेबल रहेगा। आप चाहिए तो उसको, ये फ्लाई एश ब्रिक से बनाया हुआ है, पत्थर से भी बनाया हुआ है हाथ से मैंने, या आप ईंट से बनाइए या और किसी भी स्ट्रक्चरल ब्लॉक से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जब हम वर्कशॉप करते हैं तब हम बच्चों को ये भी समझाने की कोशिश करते हैं उसका, कि उसका शेप कैसा है, वो तो हम अलग अलग चीजों से उसका शेप बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हम शेप को समझने की कोशिश करते हैं। जी। और जो मैंने उत्तराखंड का स्कूल बताया था वो भी पूरा की पूरा उसका फ्लोर जो है वो इसी से बना हुआ है। हाँ जी। ओके, थैंक यू तापस जी। आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। सो प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरीज और समथिंग इन योर माइंड। हाँ जी, विजेता गुड आफ्टरनून जी सर। का कुछ आया है। हाँ, नमस्ते, बताइए। सर मेरा नाम प्रतीक अहिरवार है। मैं आईपीएस कॉलेज हाँ में हाँ। अपनी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। सर मैं अपना सवाल पूछने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप ही का जूनियर रह चुका हूँ एमआईटीएस कॉलेज से। आप 5th ईयर अच्छा। में थे, मैं 1st ईयर में था। और हाँ सर, मैंने आपका ओके। काम देखा है। मैं हुनरशाला कच्छ में भी गया था, गुजरात में। काफी इंस्पायर हुआ था आपके काम से। तापस सर, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि जैसे हमें पता है, हमने कॉलेज में सीखा था कि आर्किटेक्चर में 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पॉइंट, लाइन, प्लेन और वॉल्यूम। तो सर सोशल आर्किटेक्चर में भी कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, दो दो तरीके हैं ना काम करने के। मतलब एक जो आप बोल रहे हैं, एक जो आर्किटेक्चर फीचर्स हो गए, ठीक है, पर आपको ये भी समझना होगा प्रतीक, कि हम लोगों का जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ना, जो भी आपको कॉलेज में, मुझे कॉलेज में सिखाया गया है, वो उसका जो बेस है, या तो न्यूफर्ट है, या आप समझ रहे हैं, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो शायद अगर आप घूमेंगे या और लोगों से बात करेंगे ना आपके आजू बाजू के इलाकों में, वो ऑब्सलीट है, उनका कोई बेस नहीं है। और हम अपना पूरा ही पूरा जो नया कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है उसके बेस पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कोर्स हर चीज का मर्जेंस होना चाहिए। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि सोशल आर्किटेक्चर में भी क्या पॉइंट होते हैं, सोशल आर्किटेक्चर में सिर्फ एक सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है। ठीक है, उसमें आप कोई भी इंसान आपकी साइट पे हो, या आपकी कोई भी इंसान जो आपके इर्द गिर्द जुड़ा हो, आपके इकोसिस्टम में जुड़ा हो, आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसको तवज्जो देते हैं, आप उसके लिए उसकी जो भी कैपेबिलिटी है, आप उसको आप ये नहीं समझते हैं, क्योंकि इन जनरल जो हमको कॉलेजेस में सिखाया जाता है कि अरे भाई हम बहुत बड़े तुर्रम कहाँ हैं, हम ही सब जानते हैं, ऐसा नहीं। आप उसकी आप उनसे सीखते हैं, और तो एक ही समागम होता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये सबसे बेस पॉइंट है। अगर इस पे आप आगे बढ़ के लोगों से बात करके, या और भी आपके आजू, देखिए बहुत तकलीफ है हर चीज में, ठीक है, और आप लोगों से बात करेंगे, आपको उनके इनपुट मिलेंगे, तो आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हमेशा आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी वो एक रोल प्ले करेगा। और वही सोशल आर्किटेक्चर है, और कुछ नहीं है। लोग से जुड़ा हुआ, लोक परंपरा से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है, वो सामाजिक वास्तुकला या सामाजिक डिजाइनिंग में आती है। थैंक यू सर। सर एक और सवाल मेरा इसी से लगा हुआ था। जैसे आपने बताया कि सोशल आर्किटेक्चर लोगों के लिए है, तो सर अगर मैं इसमें आप रेवेन्यू अपना वीडियो, जनरेट की बात करूं, सर वीडियो चालू करूं? हाँ, तो चेहरा तो देखिए, बताइए। यस सर। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपने अभी रेवेन्यू जनरेट की बात करी कि सॉरी सर, मैं बात कर रहा था रेवेन्यू की, कि सर आप सोशल आर्किटेक्चर लोगों के लिए बनाने वाला घर है। मतलब लोगों के लिए तैयार किए घर को हम सोशल आर्किटेक्चर कह सकते हैं। लेकिन सर अगर इसमें रेवेन्यू की बात करें, तो सर वो कैसे आप जनरेट करते हैं? और इसी के साथ साथ सर आपने लास्ट में कहा था कि इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। तो सर अगर लेबर स्किल्ड नहीं है, तो सर क्या हम सोशल आर्किटेक्चर को
तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर कोई स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास तब भी? बहुत अच्छा सवाल है। तो दोनों सवाल, सबसे पहले तो लेबर कोई नहीं होता, मतलब कारीगर होते हैं, लेबर कोई नहीं होता। मजदूर वो लोग, मजदूरी का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी वो नहीं है, टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ अपना हाथ चला रहा है, उसको लेबर बोलते हैं। तो लेबर कोई नहीं होता बेसिकली, देखा जाए तो, है ना, सब लोग कारीगर होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है। दूसरी चीज ये है कि आपने रेवेन्यू जनरेशन का बोला, तो देखिए बात क्या होता है, काम करने के तरीके हैं ये, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज टू वर्क, ठीक है। आप एज एन आर्किटेक्ट आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये आपका आपका पर्सनल चॉइस होता है ना। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं, मतलब मैं एज एन आर्किटेक्ट ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैं अपनी बिल्डिंग में कम से कम 50 to 60% जो भी चीजें आ रही है, भली वो इंटीरियर से रिलेटेड है, भली वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वो आजू बाजू में जो भी लोग हैं, वो जो कारीगर हैं, मैं उनको ही कोलैबोरेट करके उनके साथ काम करूंगा। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये दो चीज, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जनरेशन तो हो ही रहा है, आप अपना प्रोजेक्ट तो ले ही रहे, मतलब आप एज एन आर्किटेक्ट आपके पास काम आ रहा है और आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या आप यू आर असाइन टू मेक समथिंग, ठीक है। बट आप कैसे बनाते हैं ये आपके हाथ में है। और जो पूरा मार्केट है, पूरा मार्केट हम आर्किटेक्ट्स के हाथ में, आर्किटेक्ट और डिजाइनर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हाथ में ही है। अगर मान लीजिए कि हम सभी लोग अगर लगभग ये भी सोच रखे, थोड़ा से भी सोच रखे कि चलिए ठीक है, शुरुआत के तौर पे मैं पूरा तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, पर एटलीस्ट मैं एक चीज इसमें ऐसा करता हूँ कि चलो मैं आजू बाजू के कोई भी एक कारीगर को लेके उनके साथ काम करके ये तो चीज मेरी बिल्डिंग में डालूंगा। तो ये इनिशिएशन होता है, यहां से वो तालीम चालू होती है कि लोगों से बात कैसे करें। फिर धीरे 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 चल के फिर आप वो आपके प्रैक्टिस में आ जाता है, वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है, जो अभी आपके लिए ऑब्सोलीट है। मैं does that make sense मैं जो बोल रहा हूँ आपको? यस सर, यस सर। है ना। और लोगों के लिए काम करना मतलब सभी तो लोग हैं, आप भी तो लोग हो, मैं भी तो लोग हूं, है ना। बात ये है कि आप लेकिन सर काम कैसे कर रहे हैं। यस सर। सर इसी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे सर आपने बताया कि आपने भी डिस्कस किया था कि हम 10वें माले तक हम ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन सर कोई ऐसा आप मतलब इसको वर्टिकली और भी ले जा सकते हैं क्या, या फिर इसकी कोई लिमिटेशन है कि इतने हाइट के ऊपर हम जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है वो यूज नहीं कर सकते, फिर हमें कंक्रीट और सीमेंट पे ही जाना पड़ेगा? नहीं एग्जैक्टली, देखो हर एक मटेरियल की, ये हमको समझना होगा, हर एक इंसान की, हर एक मटेरियल की, जैसे हर एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज होती है ना, वैसे ही हर एक मटेरियल की अपनी कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। मतलब आप अगर मछली को बोलेंगे कि पेड़ चढ़ जाओ तो नहीं होगा, है ना। और अगर हम कंक्रीट को भी खुदा मान ले तो वो भी नहीं होगा, वो है भी नहीं, है ना। तो हमको ये होता है कि आज के टाइम में हम जैसे जी रहे हैं, हमको हमेशा कोलैबोरेशंस पे काम करना होता है, ठीक है, कि आप कौन सी चीजों को फ्यूज करके आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्ले अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो भली वो 100 माले हो, 10 माले हो, डजंट मेक सेंस। हम बेसिकली आप जो है आपके हाथ में, जो आपके इर्द गिर्द है, और आप जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको मर्ज कैसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हर एक चीजों की लिमिटेशंस है, पर आप देखेंगे तो रेसिडेंशियल सेक्टर है ना। रेसिडेंशियल सेक्टर में कोई भी 2 या 3 मालों से ऊपर, मतलब कोई अगर मैं अपना खुद का घर बना रहा हूं तो 3 मालों से ऊपर कोई नहीं जाता लगभग, मतलब या तो वो अपार्टमेंट हो, वो अलग सीन है, पर अगर इंडिविजुअल हाउसेज हैं तो काफी सारा 2 या 3 मालों में काम खत्म हो जाता है। तो मतलब ये अब मैं स्ट्रक्चरल उसके अंदर जा रहा हूँ, वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट बॉटम लाइन ये है कि आपका सवाल का जवाब देने के लिए कि हर एक चीज की अपनी एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है, उसको अगर आपको पता है वो, तो आप आराम से बहुत अमेजिंग चीजें कर सकते हैं उससे। यस सर, थैंक यू सर। अब दूसरा सवाल था, विजेता जी ने जो पूछा है मैसेज में कि योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस, थैंक यू, जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस ड्यूरिंग वर्क विद सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल है विजेता जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए।
ताकि हम बात कर सकें। चलिए ठीक है, तो ये जो आपने सवाल पूछा है इसमें बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात क्या होता है कि आप एक मार्केट होता है, मार्केट फोर्स होता है, और मार्केट फोर्स बनाने वाले कुछ लोग होते हैं, और दूसरी चीज होती है कि आप क्या चीज नई मार्केट में लाना चाहते हैं। ये और सब चीज सिर्फ इकोनॉमी बेस्ड होती है। इस पूरी दुनिया में हर चीज सिर्फ इकोनॉमी पे चल रही है, कि अगर इकोनॉमिक चेन में अगर कोई चीज सस्टेन कर पा रही है तो वो रहती है, और जब तक रहती है जब तक उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट है। अगर वो नहीं है तो वो खत्म हो जाएगी, है ना, वो स्ट्रेट अवे उसका कट जाएगा। तो सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली समथिंग जो हमको सिखाए नहीं गए कभी से, उसको तवज्जो नहीं दी गई, मतलब और दूसरी चीज ये है कि वो मार्केट में भी अभी सेट नहीं है। सेट कहाँ पे नहीं है वो, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली, मतलब ये वाला जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है मेजरली, इसके अंदर सस्टेनेबल कंसेप्ट का एक पैरेलल मार्केट नहीं है। आप चले जाइएगा चेन्नई में, बेंगलोर में, और ये वाले जो सदर्न पार्ट ऑफ रीजन है, इसके अंदर एक पैरेलल चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और उसके लिए भी लोगों ने बहुत, मतलब जो चित्रा विश्वनाथ है या योगा प्रोफेसर योगानंदा है, तो उन लोगों ने उस पर काम किया पिछले 30-35 सालों से। और अब कोई भी इंसान उस तरीके से भी घर बनाना चाहता है तो उनके पास बहुत ही कंफर्टेबल एक पूरा मार्केट तैयार है। तो जब आपके पास मार्केट बनाने के लिए जो मेहनत लगती है वो तो ऑफ कोर्स आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये मार्केट ही नहीं है। अब जैसे कि मैं जब 3 साल पहले यहाँ पे भोपाल में आया तो लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से, हाँ, सब बोले बहुत ही सुंदर तो है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा सारी चीजें हैं, पर ये दिखता कैसा है ना। तो वो चीज जो दिखता कैसा है, फिर फील क्या है, ऑफ कोर्स ठीक है, मैगजीन्स में देखा हुआ है लोगों ने और नेट पे देखा हुआ है, सुंदर भी लग रहा है, बट उसको मतलब आते आते अब जैसे 3 साल हो गए, अब लोगों को यहाँ पे समझ में आया, तो अब मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं भोपाल में ही कर रहा हूँ, तो अब वो हो जाएंगे तो उसके बाद और लोग जुड़ेंगे। तो प्रॉब्लम जो आती है, प्रॉब्लम सस्टेनेबल कंसेप्ट पे काम करने में सिर्फ एक मार्केट तैयार करने में आती है, वही मेन चीज है। और एक बार आपने वो तैयार कर लिया तो और मेरे को लगता है कि शायद मैं भोपाल इसलिए भी आया था, मैं भुज छोड़ के, पहले तो मेरे माँ बाप ऑफ कोर्स, पर दूसरा ये भी कि हमारे पूरे रीजन में इस तरीके का काम ही नहीं है। Very true, very true. जी Actually, sir, I am not from like architecture background. I am from textile, fashion technology. So you showed some slides related with the textile museum, and उसमें आपने वो जो jacquard वाला punch card और वो use किया, that is amazing. So two different fields also can connect for this particular sustainability concept. So that's why I want to know that what kind of problems you face in your work. ओ देखिए क्या होता है, अगर उस तरीके से आप जानना आप भोपाल की हैं? No, I am from Indore. Oh, you're from Indore. तो आप उस तरीके से देखेंगे ना, तो हर चीज एक दूसरे के साथ मिलती है। अगर आप एक चीज का एस्थेटिक्स जानते हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। आई मीन इट्स जस्ट लाइक म्यूजिक, आप किसी भी चीज को कहीं भी कंपोज कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि वो कोई स्टेज है, कि कोई एग्जीबिशन है, कोई बिल्डिंग है, पर उसके पीछे की सोच बहुत जरूरी है। मतलब एक चीज मैं मानता हूँ कि ह्यूमन विदाउट प्रिंसिपल इज वेरी डेंजरस, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसान का पीछे दिमाग में क्या है, बाकी तो फिर डिजाइन तो आप कुछ नहीं करिए। Because this is not a very common kind of mindset na. Sustainability is a laborers जो हैं या आप जो कारीगर कह रहे हैं, that is also very true that you have to connect with the people because they also have value. हम सब भी आम जनता ही हैं जो उसमें से आ रही हैं और काम कर रही हैं, तो हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. That is also a very good point you raise. तो ये कंसेप्ट चूंकि बहुत कॉमन नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कई बार लेबर्स को भी आपको ये सब चीजें डील करने में शायद थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा. मटेरियल ऑब्वियसली, मार्केट, ये सब चीजें हैं ही. तो मुझे वही जानना था कि आप किस तरीके से इसको फेस कर रहे हैं और कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं इसको. हाँ देखिए, ये तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमको लगता है कि मुश्किल आती है, और मैं ये भी बोलता हूँ ऑफ कोर्स मार्केट सेट करने में
वो है, उसका एक अपना टाइम फ्रेम है और आपको उसको लगे रहना पड़ता है। पर दूसरा कि जब आप ये बोलते हैं ना कि आप फॉर एग्जांपल आप साइट पे जाके किसी से बहुत अच्छी तरीके से बात कीजिएगा, आप उसके भाई घर पे क्या चल रहा है, सब बढ़िया है, ऐसा सब करके। मेरे साथ में जो कारीगर काम करते हैं वो 2-2 महीने के डिले पेमेंट पे भी काम करते हैं। उसका सिर्फ कारण ये होता है क्योंकि वो बोलते अरे भैया आप है, कोई टेंशन नहीं, आप चिल। तो अगर आप जब तक एक इंसानी कनेक्ट नहीं बनाते चीजों के साथ में, तब तक वो डेड है मेरे हिसाब से। और क्योंकि जो दिखता है, जो दिख रहा है, भली वो एक प्रोडक्ट हो, भली वो एक बिल्डिंग हो, या कुछ भी हो, वो प्रोडक्ट इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, वो तो आज है, शायद 50 साल बाद धूल में मिल जाएगा, बट उसके पीछे की जो कहानी है वो ज्यादा जरूरी होती है। और अगर वो आप कायम कर सकते हैं अच्छे तरीके से और एक अच्छे कनेक्ट से, और आप अब जो जिन भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके आजू बाजू के लोग हैं, अगर आप उनको अपनी इकोनॉमिक चेन में जोड़ रहे हैं, इफ यू आर ऑन अ इकोनॉमिक हायर लेवल एंड इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रिविलेजेस सेंसिबली, वो चीज ज्यादा कायम रहती है। Very true. Thank you, sir. It was really very nice to talk to you, and your presentation was very good. थैंक यू। मैं तापस, बहुत अच्छा रहा प्रेजेंटेशन। इसमें मैं एक चीज कहना चाह रही थी। जो तापस ने मुझे मदद की थी कि पहले यहाँ पे पहली बात तो इस तरह के आर्किटेक्चर के लिए लोग तैयार नहीं है, दूसरी तरह से कुछ लोगों ने देखा है तो वो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कारीगर नहीं होते। तो एक ऐसे क्लाइंट मुझे मिली थी जिनके लिए इस तरह का हमको घर बनाना था, जिसमें रैम्ड अर्थ यूज करना था, शैलो डोम यूज करना था, और वॉल्ट्स बनाने थे, ब्रिक वॉल्ट्स बनाने थे, और गुना टाइल्स से वॉल्ट्स बनाने थे। तो जो क्लाइंट है वो काफी अवेयर था मटेरियल्स को लेके और उसको लेके, लेकिन हमको यहाँ पे उसके लिए कारीगर नहीं मिल रहे थे। तो फॉर्चुनेटली तापस का यहाँ आना हुआ था। उस समय भोपाल में एंटर हुए थे तापस, और फिर तापस ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। वहाँ पे वॉल्ट्स बनाए थे, ब्रिक से, हॉलो ब्रिक से वॉल्ट बनाया है, और उसी सिलसिले में हमने फिर ये शैलो डोम की वर्कशॉप भी की थी। तो तापस ने एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ भोपाल में की है, और इसमें और जिस तरह से वो सेंसिटाइज भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भोपाल के लिए। हाँ शिखा मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिखा मैडम मेरी मेंटर है भोपाल में। थैंक यू वेरी मच मैडम। जी केवी राव। हाँ सर। गुड आफ्टरनून तापस जी। जी गुड आफ्टरनून। आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा। तापस जी, मुझे थोड़ी सी जानकारी, आपके काम के बारे में भी जानकारी, आपसे मिला भी हूँ मैं कई बार। मड ब्लॉक पे भी आप काम कर रहे हैं काफी, और भोपाल में मेरे ख्याल से पहले व्यक्ति आप ही जो मड ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, तो उस बारे में भी सब लोगों को थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा, मेरा सोचना ये है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। मड ब्लॉक्स बहुत अच्छा। मैंने यहाँ पे क्या, मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने टेक्नोलॉजी को इतना नहीं छुआ था जितना कि उसके पीछे के एस्पेक्ट को छुआ था सर। तो ठीक है, मैं बिल्कुल 5-10 मिनट में वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो मैंने डेब्रीज वॉल के बारे में बात करी, और डेब्रीज वॉल पे तो अभी एक पूरा की पूरा भी हम घर बना रहे हैं, पूरा की पूरा डेब्रीज मतलब मलबे से ही पूरा बना रहे हैं, उसकी दीवारें वगैरह सब कुछ। तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी है जिसका मैं देखता हूँ, मेरे पास अभी फोटोग्राफ होगा। और दूसरा मड ब्लॉक्स जो है, मड ब्लॉक्स जैसे शिखा मैडम बहुत अच्छी वाकिफ है इस बात से कि हमारा जो भोपाल वाला रीजन है, दो चीज है। मतलब एक चीज तो ये है कि आज के टाइम में, मतलब 2022 में हम आज बैठे हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन रेट इतना है कि वहां पे मैं घुसता हूं तो मेरे मोबाइल पे आ जाता है कि आप स्टे इंडोर, एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लोकली अवेलेबल मटेरियल्स की परिभाषा जो है वो बहुत बदल गई है आज के सिनेरियो में। आज के तारतम्य में लोकली अवेलेबल मटेरियल आपका पत्थर या मिट्टी, ये सारी चीज इतनी नहीं है आपके सिनेरियो में जितनी वेस्ट मटेरियल्स है।
क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 55% ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन। तो ये काफी बड़ा एक वो भी है, जिम्मेदारी भी है कि आप एज एन आर्किटेक्ट या एज अ डिजाइनर आप उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, आप उसको कैसे डील आउट कर रहे हैं। तो इसका एक छोटी सी चीज है जो सीखी, ऑफ कोर्स मैंने केयूर भाई या जो हमारे हुनरशाला में लोग हैं, तो वो उसको डेब्रीज वॉल बोलते हैं। तो आप मलबे से ही आप पूरा की पूरा अपने दीवारें बना सकते हैं, बहुत रोबस्ट होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, मजबूत आपकी नॉर्मल दीवारों से। यहाँ पे तो वो उसमें आप सिर्फ मलबे कोई, जैसे और मैं उसके बारे में भी बता चुका हूँ, वो पूरा थिएटर भी उससे बना हुआ और एक्चुअली एक बिल्डिंग और बनी हुई है, अब एक बिल्डिंग और बन रही है। तो ये तो एक छोटा सा एक ही एग्जांपल कि हम वेस्ट को कंसिडर कैसे कर सकते हैं और वेस्ट को ज्यादा से ज्यादा हम बिल्डिंग सेक्टर में कैसे इस्तेमाल में करें। आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। दूसरा जो केवी राव सर बोल रहे थे, मतलब मड ब्लॉक्स पे काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मैंने पहला पॉइंट क्यों बोला वो इसको सिद्ध करने के लिए कि हमारा जो भोपाल रीजन है वो उसमें मिट्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा या तो थोड़ी चट्टानी क्षेत्र है या ज्यादा से ज्यादा काली मिट्टी है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के लिए काली मिट्टी काम की नहीं होती, क्योंकि वो एक्सपांसिव होती है और काफी सारी उसमें दिक्कतें होती हैं। तो बिल्डिंग के लिए आपको चाहिए या तो आप लाल मिट्टी हो या पीली मिट्टी हो, या कुछ इलाकों में जैसे पांडर मिट्टी बोलते हैं, और वो भी अगर चिकनी है, जो कि जनरली यहाँ पे आप 15-16 फीट अगर खोदते हैं जो आपको नीचे मिलती है, तो वो भी चिकनी होती है, उसमें भी सैंड कंटेंट नहीं होता। तो अगर आपके पास सैंड कंटेंट भी नहीं है तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपको रेती भी चाहिए उसके अंदर, नहीं तो आप कुछ भी नहीं बना सकते उसे। तो मतलब इसलिए बहुत कम पैचेस में ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ भोपाल हमारे पास इस तरीके की मिट्टी है जिससे कि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो उसके साथ में मैं अभी काम कर रहा हूँ। कुछ जो मिट्टी है वो यहाँ से सलामतपुर इलाका है, वहाँ की मिट्टी है जिस थोड़ी रेतीली है, 50% उसमें रेत है, तो वो स्टेबलाइज अडोब बोलते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को, उसका मैं एक छोटा सा वीडियो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मिनट। तो मेरे पास अभी ये इस कंप्यूटर पे नहीं है, तो मैं आपको मेरे ऑनलाइन ही बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। एक मिनट। तो मतलब वो जो मतलब स्टेबलाइज्ड एडोब का मतलब ये है कि एडोब का मतलब होता है कि कच्ची ईंट, मतलब बिना पकी हुई ईंट, और स्टेबलाइज्ड एडोब का मतलब होता है कि ऐसी कच्ची ईंट जिसको जो धुले ना, जो स्टेबलाइज्ड हो, मतलब स्टेबलाइजेशन मतलब उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो आपस में बाइंडेड है, तो वो उसको स्टेबलाइज्ड एडोब बोलते हैं। तो उसको स्टेबलाइजेशन के लिए आपको उसके अंदर सॉइल मॉडिफिकेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर रेत कम है तो मैं नई रेत इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझता, तो मैं एम सैंड इस्तेमाल करता हूँ, जो कि इक्वली अच्छी रहती है और थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। तो इसमें जो मिट्टी है उसके अंदर एम सैंड मिलाई,
लाइम मिलाया, चूने का, तो चूने से क्या होता है, चूना जो होता है वो बहुत अच्छा जो सिल्ट कंटेंट होता है, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मिट्टी उसके अंदर थोड़ा सिल्ट कंटेंट हाई है, तो सिल्ट कंटेंट को स्टेबलाइज करने के लिए चूना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो चूना, सीमेंट लगभग 8% सीमेंट, रेती, लाइम और मिट्टी, इन सब के कॉम्बिनेशन से हाथ से ही बना रहे हैं अभी हम लोग, जो कि ऑयल फिनिश है, तो दिखने में बहुत सुंदर लगती है, तो उसको एक्सपोज काम के लिए बड़ी अच्छी है। तो लगभग 6-7 महीने में आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग मिल जाएगी, तो आप सभी इनवाइटेड है देखने के लिए। या तापस जी, और भी कोई कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं? ये आप जो टाइल्स यूज करते हैं, जो मतलब आपने बताया कि भट्टे से डायरेक्टली ले करके आप जो रूफिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कंट्री टाइल्स हैं या कुछ है, तो उन वो जो एक्चुअली में जो वो बना रहे हैं एज इट इज वही आप यूज करते हैं, या उनको भी फिर कुछ आप अलग से उनको कंटेंट वाइज उनका जो भी क्ले यूज कर रहे हैं वो उसमें कुछ आप चेंज करवाते हैं? मतलब उसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या कैसी है, मतलब उसके ऊपर आप कुछ पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ वर्क करते हैं, क्या करते हैं? मतलब आप कौन से टाइल्स की बात कर रही है, माफ कीजिए? जैसे कंट्री टाइल्स वगैरह है, या आपने वो ग्लास जो यूज किए थे, कौन से ग्लास? रूफिंग में आपके आ रहे थे ना वॉल्ट जो बनाए हुए थे, ग्लास ग्लास जो थे, ग्लास वगैरह, या फिर जो रेगुलर कोई भट्टे में काम कर रहे हैं और वो उनका जो प्रोडक्शन है, आपने जैसे बताया कि हम किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं, लेकिन मटेरियल से बनाने में भी एक्चुअली में क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है हर जगह का, क्या पहले उसका कुछ बैकग्राउंड वर्क आप उस पर करते हैं कि उसकी टेस्टिंग वगैरह कुछ करके, वो जानना चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल एक्चुअली जुड़ा हुआ है जो शिखा मैडम ने बोला था कि यहाँ पे मतलब कारीगर जो है उसकी मतलब उस तरीके से जो उस तरीके की सोच वाले जो कारीगर है वो नहीं है। तो उसके लिए धीरे धीरे फिर मतलब मेरी खुद की टीम है, ये हम आर्टिसंस की, जो कि कुछ बिलासपुर से हैं, कुछ झाबुआ से हैं, तो उनके साथ हम लोग काम करते हैं मिलके। तो जो ये वाली जो चीज है, जो टेस्टिंग के लिए आप बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स देखिए, अगर आप वो ग्लास जोड़ के जो छत बनी, आप उसकी बात कर रही हैं? हाँ, सेम वही, या फिर कुछ और भी जो आप लोकली कोई मटेरियल, कोई प्रोडक्शन हो रहा है ऑलरेडी और आप वहां से आप यूज कर रहे हैं, उनसे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं उनको, तो उसमें मतलब कुछ चेंज करवाते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये मैं जानना चाह रही हूँ, या एज इट इज कहीं आपने यूज किया है उन चीजों को? जी, देखिए, तो जो बेस लाइन है ना, देखिए किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस का वो होता है सैम्पलिंग, ठीक है? मैं बिना सैम्पलिंग के, मतलब 1-2 बार इंसिडेंट हो चुके हैं मेरे साथ में पहले, तो बिना सैम्पलिंग के तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ता। मतलब कुछ भी चीज बनानी है नई या ट्राई आउट करनी है, उसके पहले उसकी सैम्पलिंग होती है, भली कोई फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या छत के लिए कर रहे हो, या दीवार के कुछ नए पैटर्न्स है, या कुछ भी है, तो वो पहले सैम्पलिंग होती है उसकी। और उस सैम्पलिंग के बाद ही मतलब मान लीजिए कि कोई कुम्हार है, जैसे हरदा में अभी हमने एक कम से कम 2000 स्क्वायर फीट की पूरी एक वुड लगाई है, अभी फिलर स्लैब लगाया, तो वहां पे जो कुम्हार थे, सबसे पहले उनसे हमने 50 जो हमने साइज दिए थे उसके हिसाब से वो बना के देख लिए कि भाई वो ठीक तरीके से बना रहे या नहीं बना रहे। उसके बाद फिर हमने उनको 2-3 हजार का ऑर्डर दे दिया, तो उससे हमको ये भी पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ क्या है, हमको क्या चाहिए, एस्थेटिकल अपील वो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज हमको देखना ही पड़ता है। इससे मतलब उनको एक्चुअली में स्किल ट्रेनिंग भी मिल रही है, जो कुम्हार हैं, जो नॉर्मली सिर्फ जो लाइवलीहुड के लिए वर्क कर रहे थे, वो स्किल्ड आर्टिजन्स टाइप से कन्वर्ट भी हो रहे हैं इसके साथ साथ में। तो आपके प्रेजेंटेशन में ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिजिनस स्टाइल, कंस्ट्रक्शन स्टाइल की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक सोशल लेवल पर बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम हमारे साथ में जिनका भी कोलैबोरेशन है, हम जिनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके साथ में हम अपने बेनिफिट्स को, हम अपने रेवेन्यू को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कैसे हम उन लोगों
उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो असली में अपने लिए कुछ नहीं करके सिर्फ हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो ये चीज आपकी बहुत अच्छी रही इस प्रेजेंटेशन में, जो सभी को सीखने लायक थी। इवन जो एडेप्टेबिलिटी वाली जो बात कर रहे थे कि किस तरह से हम बहुत अलग डायमेंशन में सोच कर भी चीजों को हम अडेप्ट कर सकते हैं, ये चीज आपने जो आई थिंक ब्रास के थे या कॉपर वाले जो वेसल्स बनाने वाले थे, उनसे जो आपने लैम्प शेड्स वगैरह बनवाए हैं, तो मतलब यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हम कितने अलग अलग डायमेंशंस में सोच सकते हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, टुवर्ड्स सोशल सस्टेनेबिलिटी, इवन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो ओवरऑल एनकम्पासिंग टू ऑल है, और जब हम अलग अलग डायमेंशंस में सोशल अलग अलग डायमेंशन की में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम आखिर में जाकर के हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर वर्क कर ही रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी थी, और आई थिंक एवरीवन इज इंस्पायर्ड विथ योर प्रेजेंटेशन एंड योर वर्क आल्सो। तो थैंक यू तापस जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? आई थिंक इसमें जो अभी आपने चारू मित्र आपने जो बोला जी, कि जो यहाँ आर्टिजन भी एनरिच हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जो इनके साथ जो काम अगर कर रहे आर्टिजन नहीं भी है तो वो धीरे धीरे एक आर्टिजन में डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है वो। हो रहा है। जैसे जो आप गिलास वाली जो आप वो कह रही थी रूफ, वो एक गुना टाइल्स है, जो बेसिकली जो कवेलू बनते हैं, हाँ, तो एक ऐसा जिनको सिलेंडर बनाते हैं और उसके दो टुकड़े वो काट के हाँ, उसके उनको दो बना आई थिंक लेते हैं। कंट्री टाइल्स भी उनको ही कहते हैं। हाँ, वो कंट्री टाइल्स बनाते थे। हाँ, उन्हीं को यदि गिलास बनाने के लिए कहा गया तो वो बहुत अच्छे से उस चीज को बना पाए, और उसका एक बहुत सुंदर इस्तेमाल जो है इसमें वॉल्ट बनाने में इसका हुआ। तो यहाँ यानी आर्किटेक्ट भी एनरिच हुआ और वहीं वो आर्टिजन भी एनरिच हुआ। बिल्कुल। यहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजी एंड आर्ट दोनों कैसे आके मर्ज हो रहे हैं, वो भी एक अपने आप में देखने की चीज है और सीखने की चीज है। तो तावस जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, एंड इसको जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी बाकी लोगों में को भी प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। और बिल्कुल हम हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि शायद लोकल लेवल पर हम अपने घर के लिए, अपने प्रीमाइसेस या कैंपस में उनको यूज कर सकते हैं। तो इससे शायद सभी लोग को ये चीज, ये इतना मतलब आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू ये अवेयरनेस तो जरूर बहुत सारे लोगों में आई होगी, और नेचुरली जो यहाँ पर कुछ अवेयरनेस जो आई है वो आगे स्प्रेड भी होगी, मल्टीप्लाई भी होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वंडरफुल सेशन। थैंक यू। बिल्कुल। इसमें एक और चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अपने ये, क्योंकि काफी मतलब ये भी चीज मैंने देखा गया है कि क्योंकि हम लोग जो आज के समय में जो चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो काफी बार ये होता है, जैसे शिखा मैडम भी बोल रही थी कि वो हमको वो प्रोडक्ट एकदम से कारीगरों से नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका माइंडसेट उस हिसाब से ट्रेन नहीं होता। तो हम लोग रेगुलरली इस पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कसेरा मोहल्ला के साथ में फुल फ्लेजेड काम करना चालू कर दिया है, तो हमारी प्रोडक्ट रेंज ऑलमोस्ट रेडी है मार्केट में आने के लिए। आगौर ही हमारा ब्रांड का नाम है। दूसरा कि हम लोग अभी लोहार कम्युनिटी के साथ में, जो हमारे भोपाल के अलग अलग इलाकों में, राजस्थान या अलग अलग क्षेत्रों से आके माइग्रेटेड है, और यहाँ पे वो अपने अलग छोटा मोटा भी धंधा करते हैं, वो बना के अपने कढ़ाइया और ऐसा सब बेचते हैं। तो उनके साथ भी हम काम करके नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं अभी। दूसरी आर्टिसनशिप है। ऐसे ही हम बुनाई और इन सब के साथ में भी एक फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट डिजाइनिंग का वो कर रहे हैं। तो आप में से किसी को भी अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्रास से रिलेटेड तो ऑफ कोर्स आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ही सामने, और किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शिखा मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी लोगों का भी। थैंक यू तापस जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू तापस। तो
इसके साथ ही हमारा ये वाला आज के सेशन सभी खत्म होते हैं, एंड आवर नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट टुमारो एट 10:30 AM, or there is a little change in the presentation sequence. कल जो पहला प्रेजेंटेशन है